इंटीग्रेशन पार्ट 6। लास्ट लेक्चर में हमने 13th क्वेश्चन तक किया था। नाउ वी डू 14th क्वेश्चन। दिस इज सब टाइप ए। सब टाइप ए क्वेश्चन नंबर 14। e raised to x log sin e raised to x upon tan e raised to x। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें ये इसका पावर 1 है, ये रेस टू 1 है। सो 1 इज द पावर, तो log sin e raised to x को t लिखना पड़ेगा। उसके लिए उसका डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे। ये tan थीटा है, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ एज आई टोल्ड यू दिस इज रेस टू 1। So 1 is the power, base is log sin e raised to x. So we'll put log sin e raised to x equal to t. We now differentiate with respect to x. Log sin e raised to x का आएगा 1 upon sin e raised to x, derivative of sin e raised to x. So ये log u है तो 1 by u du by dx, that is 1 upon sin e raised to x। sin e raised to x का आएगा cos e raised to x into derivative of e raised to x, तो आएगा e raised to x cos e raised to x dx upon अब ऑब्जर्व करो, ये पूरा क्वांटिटी प्रेजेंट है क्वेश्चन में। ये पूरा टर्म प्रेजेंट है, e raised to x cos e raised to x dx upon sin e raised to x। So that quantity will become dt and log sin e raised to x will become t। So this will become integral t dt या t raised to 1 dt। ये पूरा क्वांटिटी e raised to x cos e raised to x dx upon sin e raised to x will become dt और log sin e raised to x is t, तो आएगा t का इंटीग्रल t square by 2 and back substituting क्या होगा, इंटीग्रल I will be log sin e raised to x the whole square divided by 2 plus c। This problem is important, 14th is important and it is solved. It is given solved. Now we write an important note. So जहां पे कुछ भी पावर नहीं होगा वहां पे पावर 1 अज्यूम करने का, देयर इज नो पावर इन्वॉल्व एनीवेयर, तो पावर 1 अज्यूम करेंगे और log साइन का डेरिवेटिव होगा 1 by sin एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन, सो 1 upon sin एंड साइन का cos। ऑलराइट, to integrate even powers of sec x or cosec x, split them in terms of sec square x or cosec square x। Now
tan x इक्वल टू टी और cot x इक्वल टू टी। पहले टू इंटीग्रेट इवन पावर्स ऑफ sec x और cosec x split in terms of sec square x और cosec square x respectively, keeping one sec square x और cosec square x as it is, जैसा है वैसे ही रखने का। replace the other sec square x, बाकी जितना sec square x होगा वहां 1 plus tan square x लिखने का, और जहां cosec square x है वहां 1 plus cot square x लिखने का। then put tan x equal to t और cot x equal to t. Now we are doing problem 15. Question 15 is also important. Integral sec raised to 4x. This we'll write it as sec square x into sec square x. ये sec square x as it is रखेंगे और ये sec square x के जगह पे 1 plus tan square x लिखेंगे। We'll replace this sec square x by 1 plus tan square x. Now this, यहाँ पे ये 2 is the power. So जहां पावर होगा बेस को t लिखने का, this is u square where u equal to tan x. So we'll put tan x equal to t. We'll put tan x equal to t. Differentiate with respect to x. Tan x का आएगा sec square x is equal to dt by dx. Therefore, sec square x dx will become dt. So integral I will become integral 1 plus what is tan x t, so t square and dt, बीच में प्लस साइन है तो इंटीग्रल 1 dt एंड इंटीग्रल t स्क्वायर dt। 1 का आएगा t और t स्क्वायर का आएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c, एंड बैक सब्सटीट्यूटिंग आंसर आएगा tan x प्लस tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c इज द आंसर। t के बदले tan x बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे। दिस इज ऑल्सो गिवन सॉल्व। दिस इज गिवन सॉल्व। ये 14th और 15th दोनों इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ऑलराइट, बोथ आर गिवन सॉल्व। सो अभी याद रखेंगे जब भी इवन पावर्स होगा sec x या cosec x का, ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर स्प्लिट करने का। ये sec raised to 4 को sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, सपोज sec raised to 6 आया, सपोज sec x raised to 6 आया तो उसको 3 पार्ट में स्प्लिट करने का, sec स्क्वायर sec स्क्वायर sec स्क्वायर। एक sec स्क्वायर एज इट इज रखने का और बाकी जितना sec स्क्वायर है उसको 1 प्लस tan स्क्वायर के टर्म्स में स्प्लिट करने का। सो दिस विल बिकम 1 प्लस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x। फिर इसके जैसे ही tan x को t लिखने का, इसको एक्सपांड कर देने का, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज टू 4x। बाई चांस अगर sec रेज टू 6 आया तो sec स्क्वायर sec स्क्वायर sec स्क्वायर, cosec रेज टू 6 आएगा तो cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर। एक cosec स्क्वायर एज इट इज रखने का, बाकी जितना cosec स्क्वायर होगा उसके जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर एंड फिर cot x इक्वल टू t। Look here, another important note: to integrate polynomial in x into
ax plus b raised to n. Put ax plus b equal to t. Again, method remains the same. जहां पावर दिखेगा बेस को t लिखने का, पावर दिखेगा बेस को t लिखने का. सो ax plus b equal to t. देन बाद में 3 चेंजेस करने का. कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ t, dx इन टर्म्स ऑफ dt एंड px इन टर्म्स ऑफ pt. x को t में कन्वर्ट करने का, dx को dt में, और px मतलब पॉलिनोमियल इन x, px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, उसको कन्वर्ट करने का पॉलिनोमियल इन t के टर्म्स में. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 16th. इंटीग्रल 5 minus 3x into 2 minus 3x raised to minus 1 by 2. Again, method remains the same. पावर ऑब्जर्व करने का, ये माइनस हाफ इज द पावर. जहां पावर होगा बेस को t लिखने का. सो वी से लेट 2 minus 3x equal to t. We now differentiate with respect to x. तो क्या होगा? 0 minus 3 into 1 is equal to dt by dx. Therefore, dx will become minus dt upon 3. Now, since 2 minus 3x equal to t, so minus 3x equal to t minus 2. So x is equal to t minus 2 upon minus 3. ये हमने पहले dx को dt में कन्वर्ट किया, dx को dt में कन्वर्ट किया, x को t में कन्वर्ट किया, और अभी px को pt में कन्वर्ट करेंगे. आगे जो ब्रैकेट है वो px है. So I will now say consider 5 minus 3x, that is 5 minus 3 times क्या है x का वैल्यू? t minus 2 upon minus 3, that is 5 plus t minus 2. minus 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा t plus 3. ये 5 minus 3x का वैल्यू हो जाएगा t plus 3. So this integral will now become, जब भी एक पॉलिनोमियल इन x और लीनियर टर्म का पावर, ये पॉलिनोमियल इन x है और लीनियर टर्म का पावर, पॉलिनोमियल इन x मल्टीप्लाइड बाय लीनियर टर्म का पावर, तो जहां पावर होगा बेस को t लिखने का. इन 3 चेंजेस करने का, x इन टर्म्स ऑफ t, dx इन टर्म्स ऑफ dt एंड एंटायर px इन टर्म्स ऑफ pt. सो व्हाट विल इंटीग्रल बिकम? इंटीग्रल I will become, what is the first bracket? 5 minus 3x, उसका वैल्यू है t plus 3, and what is the second bracket? 2 minus 3x is t, so t raised to minus half, and dx का वैल्यू minus dt upon 3. ये माइनस साइन को बाहर ले लेंगे और 3 को भी बाहर ले लेंगे, so minus 1 by 3 will come out, and इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म के साथ.
इधर पावर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम -1/3 t रेज टू हाफ एंड 3 टाइम्स t रेज टू -हाफ, बीच में प्लस साइन है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट होगा, इंटीग्रल t रेज टू हाफ dt and 3 times t raised to -half dt. This will become -1/3 t raised to 3/2 upon 3/2 and 3 times t raised to 1/2 upon 1/2 plus c. This will become 2/3 t raised to 3/2 and 2 3s are 6 times t raised to half plus c. And back substituting क्या है t का वैल्यू 2 - 3x रेज टू 3/2 and 6 times is the answer. Now we come to question 17. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब भी पॉलिनोमियल इन x, दिस इज पॉलिनोमियल इन x एंड दिस इज लीनियर टर्म का पावर, ये पॉलिनोमियल है, इसको लीनियर टर्म भी बोल सकते हैं एक्चुअली, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, दिस इज पॉलिनोमियल इन x एंड लीनियर टर्म का पावर, तो जहां पावर होगा बेस को t लिखने का, फिर x को t में कन्वर्ट करने का, dx को dt में कन्वर्ट करने का, और px, ये जो px है उसको इन टर्म्स ऑफ t pt में कन्वर्ट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करना है, बाकी रेगुलर इंटीग्रेशन है। सेवेंटीन्थ, टू एक्स प्लस 1 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मेथड होगा x प्लस 2 को t लिखने का। वन मेथड इज टू पुट x प्लस 2 इक्वल टू t, ये एक मेथड है जो हमने अभी लर्न किया है। दिस इज अगेन पॉलिनोमियल इन x मल्टीप्लाइड बाय लीनियर टर्म का पावर px इंटू लीनियर टर्म का पावर, लेकिन हमने ये इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा है आगे, ये टाइप का ax प्लस बी इंटू रूट ऑफ cx प्लस डी, तो जो टर्म रूट के बाहर है उसको कन्वर्ट करने का रूट के अंदर वाले टर्म्स के फॉर्म में, ऑलराइट। तो इसको याद होगा तो हमने ऐसे किया था, ये x वाला टर्म जो बाहर है और x वाला टर्म जो अंदर है उसको डिवाइड करने का, तो 2x अपॉन x विल बिकम 2, ये 2x और x को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 को आगे लिखेंगे ब्रैकेट में, ये लिखेंगे x प्लस 2, ये x प्लस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2x ऑलरेडी ऊपर है प्लस 4, ऊपर 4 नहीं है प्लस 4, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए -4, अब ये ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा, 2x प्लस 4 माइनस 4, 4 कैंसिल होकर 2x आएगा, तो ये 1 एज इट इज लिखेंगे इंटू रूट ऑफ x प्लस 2, दिस विल बिकम 2 टाइम्स x प्लस 2 माइनस 3 इंटू x प्लस 2 रेज टू हाफ, ये रूट को रेज टू हाफ कर दिया, ये -4 में 1 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म के साथ, इधर पावर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, तो ऐड होके
रेस टू 3/2 हो जाएगा. So this will become 2 times x plus 2, 1 plus half will be 3/2 and 3 times इधर कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 आएगा. 3/2 में एक ऐड करेंगे तो 5/2 आएगा, डिवाइडेड बाय 5/2 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 1 एंड x plus 2 रेस टू, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आएगा 4/5 x plus 2 रेस टू 5/2 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा. 2 टाइम्स as you can see this method, जब भी ये टाइप का प्रॉब्लम आएगा ax plus b into root of cx plus d, तो cx plus d को t लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेटर मेथड ये है एडजस्टमेंट मेथड. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. राइट, एंड दिस इज गिवन सॉल्ट. 17th is solved. Now we come to question 18. 18th is 7 plus 4x plus 5x square upon 2x plus 3 raised to 3/2 dx. This 18th is important. This we can now write it as, actually this is 7 plus 4x plus 5x square into, अब ये जो इंटीग्रल है, ये जो ब्रैकेट है, दैट इज पॉलिनोमियल इन x एंड दिस इज लीनियर टर्म का पावर. ऑलराइट, दिस इज पॉलिनोमियल इन x, दिस इज लीनियर टर्म का पावर. सो दिस वी कैन अगेन, जो भी जहां पावर है बेस को t लिखना है, तो ये पावर है, बेस इज 2x plus 3, सो 2x plus 3 को t लिखेंगे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. 2 is equal to dt by dx. Therefore, dx is equal to dt upon 2. Now, since 2x plus 3 equal to t, so 2x will become t minus 3. t minus 3. So x will become t minus 3 upon 2. ये हमने x को t में कन्वर्ट कर दिया. I will now say consider, ये जो टर्म है उसको मैं खाली रिवर्स में लिखूंगा. 5x square plus 4x plus 7. So this will be, this is 5 times, what is x value? t minus 3 upon 2, the whole square. 4 times t minus 3 upon 2 and plus 7. So this will become, this 4 and 2 will cancel to give you 2. तो आएगा 5 times t minus 3 the whole square divided by 4. 2 times t minus 3 and plus 7. We now take LCM. कॉमन डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा. अब साथ में इसको एक्सपांड भी कर देंगे. दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9. ये t माइनस 3 द होल स्क्वायर को एक्सपांड कर देंगे. ये 2 4 जा 8 हो जाएगा. 8 टाइम्स t minus 3 and 7 4 जा 28. So plus 28.
So the value of the value of 5x square plus 4x plus 7 will become 5t square minus 30t plus 45 plus 8t minus 24 plus 28 divided by 4. So 5x square plus 4x plus 7 will become 5t square minus 30t plus 8t will become minus 22t and ये 49 divided by 4. This is the value, simplified value. अब काउंट करो कितना स्टेप लगा, 1 2 3 4 5. ये सेम कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन के अंदर भी कर सकता था, लेकिन उसमें 5 स्टेप वेस्ट हो जाता था. सो व्हाट विल नाउ बिकम, क्या है पहला ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, उसका वैल्यू आएगा 5t स्क्वायर माइनस 22t प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4. देन ये जो सेकेंड टर्म है 2x प्लस 3 वो t है, तो t रेज टू माइनस 3/2 एंड dx के बदले dt अपॉन 2. अब ये 4 एंड 2 विल मेक इट 8, वो उनको बाहर ले लेंगे तो 1/8 हो जाएगा एंड ये t रेज टू माइनस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको अंदर तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या होगा, फाइव टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू माइनस 3/2 22t t रेज टू माइनस 3/2 एंड 49 t रेज टू माइनस 3/2 dt. इधर पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो ये होगा 5 टाइम्स t रेज टू हाफ. ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होगा. ये 2 में से 3/2 जाएगा तो 1/2. 22 टाइम्स t रेज टू माइनस हाफ, 1 में से 3/2 जाएगा तो माइनस हाफ एंड 49 टाइम्स t रेज टू माइनस 3/2 dt. दिस विल बिकम 1/8 एंड बीच में माइनस एंड प्लस साइन है, सो t रेज टू हाफ dt. 22 टाइम्स t रेज टू माइनस हाफ dt and 49 times t raised to minus 3/2 dt will become 1/8 times 5 into t raised to 3/2 upon 3/2. 22 t raised to half upon half and 49 t raised to minus half upon minus half plus c. So this will become 1/8 times 10/3 t raised to 3/2, then 44 and t raised to half and 98 minus plus into minus will be minus and t raised to minus half dt. and now इसको कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूट, वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट विल गिव अस द आंसर. ये t का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर देंगे लास्ट में. सो आंसर आएगा, ये सम इंपॉर्टेंट है 18th. आंसर आएगा 1/8 टाइम्स आगे 1/8 मेंटेन रहेगा. 10/3 2x plus 3 raised to 3/2 44 and 2x plus 3 raised to half
and 98 and 2x plus 3 raised to minus half plus c. खाली बैक सब्सटीट्यूट कर दिया है हमने. दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर. वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर दिया है. मेथड इज द सेम ओनली. सिर्फ जहां पावर होगा बेस को t लिखना है. जहां पावर होगा बेस को t लिखना है. करस्पॉन्डिंग बेस को t लिखना है. -3/2 वॉज द पावर. तो जो बेस है 2x प्लस 3 उसको t लिखा. फिर dx को dt में कन्वर्ट किया, x को t में कन्वर्ट किया, पॉलिनोमियल इन x को पॉलिनोमियल इन t में कन्वर्ट किया. ये 4 2 सा 8 बाहर आ जाएगा और ये t रेस टू -3/2 को तीनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. ये 2 और -3/2 ऐड होके t रेस टू हाफ, 1 और -3/2 ऐड होके t रेस टू माइनस हाफ एंड t रेस टू -3/2 एज इट इज. ये x रेस टू n के जैसा है. तो n+1 अपॉन n+1, हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, माइनस हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 और -3/2 में 1 ऐड करेंगे तो -1/2. दिस इज द आंसर. Now we are coming to in this type of problems put denominator equal to t. ये डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करने का, प्रोवाइडेड उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा प्रॉब्लम में. डिनोमिनेटर को t लिखने का, जैसे अभी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम में जहां पावर था उसको t लिखा. यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगा उसको t लिखने का, प्रोवाइडेड उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए प्रॉब्लम में. डेरिवेटिव ऑफ द सब्स्टिट्यूशन शुड बी प्रेजेंट. डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम. ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है. ऑलराइट, डिनोमिनेटर को t लिखने का, प्रोवाइडेड उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा. सब टाइप बी का क्वेश्चन 1 अपॉन 3 प्लस 7x रेज टू माइनस n dx. अब जनरली जब भी प्रॉब्लम u अपॉन v टाइप का आएगा, दिस इज अ u अपॉन v टाइप क्वेश्चन. u अपॉन v का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई करने का वन ऑफ द मेथड्स इज
कि डिनोमिनेटर को टी लिखने का, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर को टी लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि डेरिवेटिव न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं। ऑलराइट, तो इसको कंसिडर करेंगे। दिस इज 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर को और नीचे ले लेंगे, प्लस हो जाएगा, एंड अभी एलसीएम ले लेंगे। इधर पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, इधर पावर 1 है। दिस विल नाउ बिकम, एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन ये x रेस टू 1 और x रेस टू n बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब ये x रेस टू n न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ये तो एज इट इज, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। दिस इज नाउ x रेस टू n अपॉन ये डिनोमिनेटर को टी लिखेंगे ना, इसे लेट, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस विल बिकम, क्या आएगा, दिस विल बिकम 3 will remain as it is। क्या होगा, x रेस टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव, टोपी नीचे कीमत कम, सो n प्लस 1 x रेस टू n प्लस 1 माइनस 1 और 7 का 0 इज इक्वल टू dt बाई dx, दैट इज 3n प्लस 1 इंटू x रेस टू n। हमारे पास न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है, x रेस टू n dx है, ये x रेस टू n dx है, तो उसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये अनवांटेड है, ये अनवांटेड टर्म को dt के साथ में ले लेंगे। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x रेस टू n dx, इट विल बी dt अपॉन 3 टाइम्स n प्लस 1। सो व्हाट विल योर इंटीग्रल i बिकम, ये पूरा न्यूमरेटर जो है वो बन जाएगा dt अपॉन 3 टाइम्स n प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में आएगा t, ये पूरा डिनोमिनेटर को t लिखा है हमने, ये 1 बाई 3 टाइम्स n प्लस 1 एंड dt अपॉन t, दिस इज 1 अपॉन 3 टाइम्स n प्लस 1, 1 बाई t का log ऑफ t प्लस c एंड back substituting 1 upon 3 times n plus 1 log of, what is the value of t, 3x raised to ये सब टाइप बी के इनिशियल प्रॉब्लम्स में डिनोमिनेटर को t लिखना है, प्रोवाइडेड उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आएगा उसको t लिखने का, प्रोवाइडेड उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। अगर नहीं होगा प्रेजेंट तो थोड़ा एडजस्टमेंट करने का। ऑलराइट, दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दिस विल बिकम सेकेंड क्वेश्चन। वन अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, अगेन डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ये बनेगा अगेन, इसको भी t लिखेंगे
So integral I will become this is solved. Second problem is given solved. अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. जब भी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होगा तो आंसर आएगा लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर. इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं. fx को t ले लेंगे, differentiate with respect to x, f dash x will become dt by dx. So f dash x dx will become dt. तो आंसर आएगा dt अपॉन t. ये डिनोमिनेटर में t होगा और f dash x dx dt हो जाएगा. आंसर आएगा log mod t plus c and back substituting, that is log of t is fx. तो अभी याद रखेंगे, जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होगा, जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होगा तो आंसर आएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर. जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होगा तो आंसर आएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर. f डैश x अपॉन fx, आंसर आएगा log fx प्लस c. अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है, ये प्रॉब्लम अगर 3 मार्क के लिए है तो ये मेथड यूज करने का. लेकिन ये प्रॉब्लम अगर 1 या 2 मार्क के लिए है तो यहां पे है ये डिनोमिनेटर को अगर fx लेंगे तो न्यूमरेटर f डैश x बन जाएगा. ये अगर fx लेंगे तो न्यूमरेटर f डैश x बन जाएगा. तो f डैश x अपॉन fx का आंसर क्या आएगा? log fx, यानी कि log e रेज टू x प्लस 1. तो इसके बाद डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं. खाली ब्रैकेट में ये फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx इक्वल टू log fx प्लस c. ये प्रॉब्लम अगर 3 मार्क का होगा तो यही मेथड यूज करने का, पूरा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड मेथड. लेकिन प्रॉब्लम अगर 1 मार्क या 2 मार्क के लिए पूछा होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब भी न्यूमरेटर में होगा तो log ऑफ द डिनोमिनेटर इज द आंसर. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब भी न्यूमरेटर होगा, log ऑफ द डिनोमिनेटर इज द आंसर. ये फॉर्मूला याद रखेंगे. f डैश x अपॉन fx इज log mod fx प्लस c. दिस इज गिवन सॉल्व. We come to the next question, that is question 3. That third is also important. वन अपॉन x प्लस रूट x. ये x को लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x प्लस रूट x.
ये x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स. वी कैन रिमूव रूट एक्स कॉमन, ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1. नाउ आई पुट दिस रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू t. What is the derivative of root x? 1 upon 2 root x. उसमें से 1 upon root x प्रेजेंट है. ये 1 का तो 0 हो जाएगा. इज इक्वल टू dt by dx. Therefore 1 by root x dx will become 2 dt. ये 1 by root x dx का वैल्यू बन जाएगा 2 dt. So this will become, ये पूरा क्वांटिटी dt बन जाएगा, 2 dt बन जाएगा. सो क्या होगा, इंटीग्रल आई न्यूमरेटर में आएगा 2 dt और डिनोमिनेटर में ये तो चला गया है 1 by root x dx का वैल्यू 2 dt है और ये वैल्यू t है. 2 will come out and dt upon t, that is 2 times log mod t plus c, and back substituting 2 log mod root x plus 1 plus c. Question number 4. Question 4 is e raised to 3 log x into x raised to 4 plus 1 raised to minus 1. This will now become ये रेस टू माइनस 1 को डिनोमिनेटर में ले लिया और ये 3 को मैं पावर बना दूंगा तो ये बन जाएगा, ये आगे जो मल्टीपल है वो पावर बन जाएगा, ये 3 पावर बन जाएगा. हमने पहले भी यूज किया है ये टेक्निक. ऑलराइट, दिस इज यूजिंग ये जो मल्टीपल होगा वो पावर बन जाएगा. एंड नाउ e एंड log गेट कैंसल्ड. ये भी हमने आगे लिखा हुआ है. e रेस टू log p इक्वल टू p. e का मतलब एंटी लॉग और log एंड एंटी लॉग गेट कैंसल्ड. ऑलराइट, अब ये डिनोमिनेटर को t लिख देंगे. क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. 4x क्यूब इज इक्वल टू dt by dx. Therefore x cube dx will become dt divided by 4. So what will integral become? Integral I will become dt upon 4 divided by t. This will become this fourth is also important. Alright, this can be asked for 3 marks. So first, third, fourth. Alright, and 1 by 4 we can take outside and again dt upon t. This will be 1 by 4 times log mod t plus c and back substituting 1 by 4 log क्या है x raised to 4 plus 1 is the answer. अगर बाई चांस ये सेम प्रॉब्लम अगर 2 मार्क के लिए आया देन
ये प्रॉब्लम अगर 3 मार्क के लिए आया तो ये मेथड करने का, बाई चांस अगर 2 मार्क के लिए आया, 1 मार्क के लिए आया, देन आफ्टर दिस स्टेप व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 4x क्यूब, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है 4x क्यूब, ऊपर ऑलरेडी क्या है x क्यूब, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में, ये डिनोमिनेटर एफ एक्स है तो न्यूमरेटर एफ डैश एक्स हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का, लॉग मॉड एफ एक्स, तो आंसर आएगा 1/4 लॉग प्लीज नोट, घर पे जब आप नोटबुक में लिखोगे तो यही मेथड लिखना है, यू डोंट हैव टू यूज दिस शॉर्टकट, दिस शॉर्टकट इज गिवन फॉर एमसीक्यूज और फॉर 1 मार्क प्रॉब्लम, ऑलराइट। अगर ये प्रॉब्लम 1 मार्क के लिए पूछा देन यू डोंट नीड टू डू सब्स्टिट्यूशन, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला मेथड, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बिकम्स लॉग एफ एक्स प्लस सी, दिस इज द ऑल्टरनेटिव वे। इनिशियल 1-2 स्टेप 3 स्टेप सेम रहेगा 1, 2 एंड 3, इसके बाद फिर ये मेथड यूज करने का। क्वेश्चन नंबर 5, टू sin x cos x अपॉन 3 cos square x प्लस 4 sin square x। अब ये अगेन u अपॉन v टाइप का है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम u अपॉन v टाइप का आएगा तो वन ऑफ द मेथड्स इज टू पुट द डिनोमिनेटर इक्वल टू t, सो वी से लेट 3 cos square x प्लस 4 sin square x इक्वल टू t, डिनोमिनेटर को t लिख देंगे। अब ये दोनों, ये cos square x एंड sin square x दोनों u स्क्वायर टाइप का है, ये दोनों कंपोजिट फंक्शन है, u स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2u du by dx, सो डेरिवेटिव 3 विल रिमेन एज इट इज, cos square x का डेरिवेटिव 2 cos x into derivative of cos x and 4 will remain as it is, ये sin square x का डेरिवेटिव 2 sin x derivative of sin x is equal to dt by dx, so ये 2 3 6 हो जाएगा, cos x and cos x का माइनस sin x तो आएगा -6 sin x cos x, ये 2 3 6 हो जाएगा, cos x का माइनस sin x और ये एज इट इज, और इधर 8 sin x एंड sin x का cos x, इज इक्वल टू dt by dx, दिस विल बिकम 8 में से 6 जाएगा तो 2 sin x cos x, 8 में से 6 जाएगा तो 2 sin x cos x with dx will become dt, so what will integral become, न्यूमरेटर में dt, डिनोमिनेटर में t, आंसर आएगा log of t plus c, एंड बैक सब्स्टिट्यूटिंग आंसर आएगा log of 3 cos square x plus 4 sin square x plus c, this fifth problem is given solved, this is given solved, sixth,
10x रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू x log 10 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10 dx. क्लियर दिख रहा है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 10? 10x रेज टू 9 और 10 रेज टू x का 10 रेज टू x log 10, तो 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10 को t लिखेंगे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव आएगा 10 रेज टू x log 10 एंड x रेज टू 10 का 10 इंटू x रेज टू 9 इज इक्वल टू dt बाई dx. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव परफेक्टली न्यूमरेटर है, तो 10 रेज टू x log 10 प्लस 10x रेज टू 9 dx will become dt. So what will integral become? न्यूमरेटर में आएगा dt और डिनोमिनेटर में आएगा t. डिनोमिनेटर को t लिखा, आंसर आएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस c, यानी कि log ऑफ 10 रेज टू x प्लस, ये बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू इज द आंसर. आपने ऑब्जर्व किया होगा ये टाइप के हर एक प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डिनोमिनेटर में t आता है और आंसर में log ऑफ t आता है, और उसके आगे पीछे कोई भी कोएफिशिएंट आएगा, डिपेंड करता है. आगे 1/3 है तो 1/3, 1/4 होगा तो 1/4, बट आंसर में log ऑफ द डिनोमिनेटर ही आएगा. ये टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 1 upon x log x into log x. अब what is the derivative of log x? log x को t लिखेंगे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या होगा log x का डेरिवेटिव? 1 by log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, that is equal to dt by dx. So 1 by log x into 1 by x is equal to dt by dx. है ये 1 upon x log x present, so 1 upon x log x dx will become dt. So what will integral become? ये पूरा टर्म dt बन जाएगा. ये 1 upon x log x dx will become dt. So न्यूमरेटर में आएगा dt और डिनोमिनेटर में आएगा t. आंसर आएगा log of t plus c. बैक सब्स्टिट्यूटिंग log of log x plus c. Now we come to we write another important note. To integrate 1 upon 1 upon ax raised to n plus bx, multiply numerator and denominator by x raised to minus n, and then put denominator equal to t. जब भी न्यूमरेटर में 1 होगा, डिनोमिनेटर में एक टर्म में x का पावर होना चाहिए x रेज टू n, और एक टर्म में सिंगल x होना चाहिए. तो यहां पे x रेज टू n है,
तो वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x raised to minus n and then put denominator equal to t. Now we come to question 8. Question 8. 1 upon x into x cube minus 1. This is important as well as star. ये important भी है और स्टार भी है. स्टार मतलब यही प्रॉब्लम बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर से आएगा, तो इसको अभी अंदर मल्टीप्लाई कर दो. x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ यहां पे क्या है, x रेज टू 4. तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू -4. This is important. Multiply numerator and denominator by x raised to -4. So this will become, क्या होगा, x raised to -4 upon x raised to -4. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म के साथ, इधर और इधर. इधर पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो क्या होगा ये, दिस विल बिकम दिस विल बी, क्या होगा, ये x रेज टू 0 मतलब 1 हो जाएगा. ये x रेज टू 4 और x रेज टू -4 कैंसल होके x रेज टू 0 विच इज 1. ये x रेज टू 4 और x रेज टू -4 बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा, 4 एंड -4 ऐड होके 0 आएगा. x रेज टू 0 इज 1 और इधर 1 और -4 ऐड होके x रेज टू -3. तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया x रेज टू -n से. इधर x रेज टू n होगा तो x रेज टू -n, इधर x रेज टू 4 है तो x रेज टू -4. अब डिनोमिनेटर को t लिख देंगे. will now differentiate with respect to x. क्या आएगा, 0 minus 3x raised to -4 is equal to dt by dx. Means 3x raised to -4 is equal to dt by dx. Therefore, x raised to -4 dx will become dt upon 3. ये टर्म ऑलरेडी न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. ये टर्म ऑलरेडी न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब डेरिवेटिव ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है. सो दिस विल बिकम, न्यूमरेटर में आएगा dt अपॉन 3, डिनोमिनेटर में आएगा t. 1/3 विल कम आउट एंड dt अपॉन t, दैट इज 1/3 टाइम्स log mod t plus c, and back substituting this will be 1/3 log 1 minus ये x रेज टू -3 को डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो x रेज टू 3 हो जाएगा. आंसर आएगा 1/3 log x क्यूब -1 अपॉन x क्यूब प्लस c. इज द आंसर. सो जब भी डिनोमिनेटर में एक, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में एक x रेज टू n टाइप का टर्म और एक x टाइप का टर्म होगा. यहां x रेज टू n होगा, यहां x रेज टू n होगा तो x रेज टू -n से मल्टीप्लाई करने का. तो यहां x रेज टू 4 है तो x रेज टू -4 से मल्टीप्लाई करने का और फिर डिनोमिनेटर को t लिखने का. दैट इज हाउ वी सिंप्लीफाई. ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, स्टार भी है और सॉल्व भी है. ये सॉल्व दिया हुआ है, दिस इज गिवन सॉल्व. So students, today we have learnt
टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एक जिसमें पॉलिनोमियल इन x इंटू ax प्लस बी रेस टू n था, तो जहां पावर होगा बेस को t लिखने का, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी लर्न टुडे. सेकंड टाइप प्रॉब्लम वो था जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट था, तो डिनोमिनेटर को t लिखने का एंड आंसर आएगा log ऑफ t प्लस सी, यानी कि log ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस सी. और हमने ये वाला फॉर्मूला भी देखा, इंटीग्रल f डैश x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू log एफ एक्स प्लस सी. जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा, आंसर आएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस सी. Alright, so this is what we have studied today. Please keep on revising the chapter. This chapter is highly evaporative, means highly volatile. अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आगे थोड़े दिन के बाद ये सब नया नया लगेगा. Alright, so please revise. Alright, and please do the important sums in your notebook. Once the classes restart, I will, in the first lecture itself, I will be checking the problems. Without the problems, you will not be allowed to enter the class. So please make sure you do it. All right, keep on doing it and maintaining the notebook. All right, thank you.